والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بھٹکل کے مشہور و معروف عالم دین مرکز نظام الدین کے موقر و اہم ترین ذمہ دار اور ہر تنازع سے خود کو دور رکھنے والے حضرت مولانا محمد غزالی خطیب ندوی آج چل بسے۔ کرناٹک اٹھنے لگی مخالفت کی آوازیں، آخر کب تک چلے گی کمار سوامی کی حکومت؟ سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی کی مرکزی وزیر مملکت اپیندر کشواہا کو مہا گٹھ بندھن میں آنے کی پیشکش۔ رویش کا بلاگ لیڈر آپ کو کلیکٹر نہیں فسادی بنانے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ پرنب نے RSS ہیڈ کوارٹر جا کر سنگھ کو فرضی خبریں پھیلانے کا موقع دے دیا، پرنب کی بیٹی کا بیان۔ PM مودی کے قتل کی سازش کا ہوا انکشاف، راجیو گاندھی کی طرح تھا خاتمہ کا منصوبہ۔ اورنگ آباد اسلحہ ضبطی معاملہ، ریاستی حکومت نے 20 مسلم نوجوانوں کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ ہریانہ 5 نوجوانوں نے نابالغ سے کیا گینگ ریپ، زہر دے کر مار دیا۔ امت شاہ سے ملاقات کے بعد شیو سینا کا اعلان، آئندہ لوک سبھا الیکشن ہم اکیلے لڑیں گے۔ گوری لنکیش ہندو مخالف تھیں اس لیے ان کو مارنا پڑا، ملزم کا اعتراف۔ ایمبولینس نہ ملنے سے ای رکشے پر خاتون کی ہوئی ڈیلیوری، بچے کی موت۔ ترکی کسی بھی دن کسی بھی وقت شمالی عراق پر حملہ کر سکتا ہے، ایردوغان کا بیان۔ فیس بک میں پھر ہوئی گڑبڑی، 1.4 کروڑ یوزرز کا پرائیویٹ ڈاٹا ہوا پبلک۔ آسٹریا میں 7 مساجد بند، 16 ائمہ برخاست اور حکومت نے بتائی یہ وجہ۔ روسی فوج نے ادلب میں قیامت ڈھا دی، 38 شہری جاں بحق ہو گئے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر بھٹکل سے ہے اور یہ رپورٹ رضیت الابرار بلاگ اسپاٹ میں تفصیلات پیش کی گئی ہیں، جس کو سیدھی بات شکریہ کے ساتھ پیش کیا کر رہا ہے۔ شہر بھٹکل کے مشہور و معروف عالم دین صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا محمد غزالی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا آج مورخہ 23 رمضان المبارک 1429 مطابق 8 جون 2018 عیسوی صبح اذان فجر کے وقت انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ بعد نماز عصر جامع مسجد بھٹکل میں ادا کی گئی۔ حضرت مولانا غزالی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ سابق قاضی شہر بھٹکل حضرت قاضی ابوبکر خطیبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور سابق قاضی شہر بھٹکل حضرت قاضی محمد احمد خطیبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی اور نائب قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا عبدالرب صاحب کے عم محترم استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا عبدالسلام خطیب ندوی اور مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی خطیب جامع مسجد بھٹکل کے ماموں اور استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا ابوبکر صدیق خطیب ندوی کے والد ماجد ہیں۔ انجمن ہائی اسکول بھٹکل میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی، پھر جامعہ اسلامیہ جامع آباد بھٹکل میں داخلہ لیا۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں حضرت مولانا عبدالحمید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 7 سالہ نصاب 4 سال میں مکمل کیا۔ جامعہ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں درجہ عالمیت میں داخلہ لیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہوئے۔ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے اولین شورا کے رکن منتخب ہوئے۔ چونکہ آپ کا خاندان کئی پشتوں سے جامع مسجد بھٹکل کی خطابت کے فرائض انجام دے رہا تھا، آپ کے والد دادا پردادا سب جامع مسجد بھٹکل کے خطیب رہے ہیں۔ بھٹکل کے دینی و علمی خاندان میں آپ پیدا ہوئے۔ خاندانی شرافت پہلے ہی سے تھی۔ اپنے والد ماجد حضرت قاضی ابوبکر خطیبی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، جو اپنے زمانے کے صاحب نسبت بزرگ تھے۔ بھٹکل کے دیگر مشائخ سے بھی عقیدت و محبت کا تعلق تھا۔ بانی جامعہ حضرت ڈاکٹر علی ملپا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عقیدت رہی۔ جب بھی مرکز نظام الدین دہلی سے بھٹکل تشریف لاتے تو ضرور حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے۔ بھٹکل کے صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا محمد اسماعیل اکرمی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ فرمایا۔ آپ سے فقہ شافعی کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ہندوستان کے دیگر اکابر سے بھی استفادہ کیا، خصوصاً حضرت مولانا عبدالباری ندوی لکھنوی، خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ بعض ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ گزشتہ 45 سال سے مرکز نظام الدین دہلی ہی میں مقیم تھے، لیکن اپنے کو نمایاں کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ تواضع و اخلاص کے آپ پیکر تھے۔ رمضان سے قبل بھٹکل تشریف لائے، پیروں میں سوجن کی وجہ سے گھر ہی میں تھے،
यही मर्ज मर्जुल वफात साबित हुआ। आपकी पैदाइश 1944 ईस्वी को हुई। ईस्वी के हिसाब से आपकी उम्र 74 साल और हिजरी के हिसाब से आपकी उम्र 77 साल थी। अल्लाह ताला आपके बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाज़रीन, अब खबर बेंगलुरु से है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत को तश्कील पाए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वजारत को लेकर फूट पड़नी शुरू हो गई है। तकरीबन 1 दर्जन लीडरान जिनको काबीना में जगह नहीं मिली है, उन्होंने मुखालिफत का परचम बुलंद करना शुरू कर दिया है। नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर के घर पर भी देर रात मीटिंग में भी इसका कोई हल नहीं निकल पाया और गैर मुतमईन मेंबरान असम्बली की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। मारूफ मेंबरान असम्बली एम बी पाटिल, रोशन बेग, शमनूर शिवशंकरप्पा और सतीश झरकेवड़ी, एम कृष्णप्पा, दिनेश गुंडूराव, ईश्वर खांडरे इन मेंबरान असम्बली में शामिल हैं जो काबीना में वज़रा के इंतखाब को लेकर खास तौर पर गैर मुतमईन हैं। कांग्रेस पार्टी के कदावर लीडर पाटिल, गुंडूराव, बेग, रेड्डी, झरकीवाल और शिवशंकरप्पा को काबीना में शामिल न किया जाना चौंकाने वाला है। बेइज्जती महसूस करते हुए वो लोग इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। एम बी पाटिल और ईश्वर खांडरे लिंगायत को अलग मजहब का दर्जा दिए जाने की मुहिम में सबसे आगे थे। 89 साल के शिवशंकरप्पा वीर शिवा लिंगायत को अलग मजहब बनाना चाहते थे। पाटिल सिद्धारामैया हुकूमत में आबी वसाइल के वजीर थे। उन्होंने कहा कि अब अगर उन्हें वजीर का ओहदा दिया भी जाएगा तो भी वो उसे कबूल नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरे दर्जे की शहरी नहीं है। पार्टी के दीगर लीडरों का इल्जाम है कि जी परमेश्वर पार्टी के दीगर लीडरों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सिद्धारामैया के नजदीकी लीडरों की ताकत को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि परमेश्वर अवामी लीडर नहीं है। उन्होंने हाल के इंतखाबात में भी पार्टी के लिए तशरीह नहीं की थी। वो अपनी सीट भी मुश्किल से ही जीते हैं। अब वो सिद्धारामैया के नजदीकी लोगों से बदला ले रहे हैं। अब खबर पटना से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी RLSP और मरकजी वजीर ममलिकत उपेंद्र कुशवाहा के NDA भवन अशाइया में शामिल न होने के बाद से बिहार में क़ियास आराइयों का बाजार गर्म है। जुमेरात को साबिक वज़ीर आलम जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अजीम इत्तेहाद यानी महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा का इस्तकबाल है, हालांकि उन्हें वज़ीर आला ओहदे की ख्वाहिश छोड़नी होगी। अजीम इत्तेहाद में तेजस्वी यादव ही वज़ीर आला ओहदे के उम्मीदवार हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अजीम इत्तेहाद में सीटों को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है और सीट शेयरिंग के लिए जल्द ही कमेटी बनेगी। इतला के मुताबिक जुमा की सुबह जीतन राम मांझी ने RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की है। वाज़ेह है कि जुमेरात को NDA भोज में उपेंद्र कुशवाहा के शामिल न होने के बाद से कई तरह की क़ियास आराइयाँ की जा रही हैं। ज़राए से ये भी खबर आ रही है कि नायब वज़ीर आला सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं होंगे। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से जुमा की सुबह पटना पहुंचे और सासाराम के लिए रवाना हो गए। उनका रात में कैमूर में ठहरने का प्रोग्राम है। दूसरी जानिब बिहार के वजीर ज़राअत और बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम कुमार की रिहाइशगाह पर बीजेपी लीडरों की मीटिंग हुई, जिसमें सुशील मोदी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, प्रेम कुमार और दीगर लीडरान शामिल हुए थे। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के RSS के प्रोग्राम में शामिल होने को लेकर कई कांग्रेसी लीडरों के बयान के बाद अब उनके घर वालों ने ही उस पर सवाल उठा दिया है। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने बुध को कहा कि वो नागपुर जाकर बीजेपी और RSS को फर्जी खबरें गढ़ने और अफवाहें फैलाने की सहूलत फराहम कर रहे हैं। उन्होंने खुद के बीजेपी में जाने की क़ियास आराई को खारिज किया। उन्होंने अपने वालिद को खबरदार किया है कि वो बुध के हादिसे से समझ गए होंगे कि बीजेपी का डर्टी पॉलिटिक्स महकमा किस तरह से काम करता है। दिल्ली कांग्रेस की तर्जुमान शर्मिष्ठा ने ट्वीट किया, उम्मीद करती हूं कि प्रणब मुखर्जी को आज के हादिसे से उसका एहसास हो गया होगा कि बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है। उन्होंने कहा, यहां तक कि RSS कभी ये तस्वुर भी नहीं करेगा कि आप अपनी तकरीर में उनके ख्यालात की हिमायत करेंगे, लेकिन आपकी तकरीर भुला दी जाएगी और तस्वीरें याद रह जाएंगी जिनको फर्जी बयानों के साथ फैलाया जाएगा। हज की अदायगी का ख्वाब कौन नहीं देखता। हर मुसलमान का हज की अदायगी के साथ उनकी ज़िंदगी में दीनी इनकलाब लाना ही मकसद होता है। इदारा कारवान हरमैन बेंगलुरु गुज़िश्ता 5 सालों से इस मैदान में खिदमत अंजाम दे रहा है और किस्तवार रकम की अदायगी के साथ इस ख्वाब को पूरा करने में भरपूर मुआवनत फराहम करता है। 3 से 4 उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी हज के तमाम अराकीन की अदायगी का ख्याल रखते हुए आज़मीन हज का भरपूर ख्याल रखना ही
कारवान हरमैन का मकसद है। चलिए तशरीफ़ लाइए और कारवान हरमैन को खिदमत का मौका फराहम कीजिए। स्क्रीन पर पता और राब्ता नंबर दर्ज है, राब्ता करने के लिए हरगिज़ झिझक महसूस ना करें। अब खबर नई दिल्ली से। नक्सली एक ग्रुप पीएम मोदी के कत्ल को अंजाम देने का मंसूबा बना रहे हैं। पुणे पुलिस ने जुमा के रोज कोरेगांव तशद्दुद मामले से मुताल्लिक रखने वाले 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि उनके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओनवाज से मुताल्लिक है। पुलिस को मुलजिमीन में से एक के घर से खत मिला है जिसमें इस बात का जिक्र है कि नक्सली एक और राजीव गांधी कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इस्तिगासे ने अदालत को बताया कि दिल्ली में रोना विल्सन के घर से मिले खत में M4 बंदूक और गोलियां खरीदने के लिए 8 करोड़ रुपए की जरूरत की बात लिखी है। साथ ही इसमें एक और राजीव गांधी कत्ल का जिक्र भी किया गया है। मुलजिम के घर से बरामद हुए खत में लिखा है, पीएम मोदी का पूरे मुल्क में बढ़ता दायरा हमारी पार्टी के लिए हर तरफ से बड़ा खतरा है। मोदी लहर का फायदा उठाते हुए बीजेपी मुल्क के 15 से ज्यादा रियासतों में अपनी हुक्मरानी करने में कामयाब हुई है। ऐसे में हमें पीएम मोदी के खात्मे के तहत सख्त कदम उठाने होंगे। हम सोच रहे होंगे कि राजीव गांधी कत्ल की तरह उसे भी अंजाम दिया जाए ताकि देखने में खुदकशी या फिर हादसा जैसा लगे। एक और राजीव गांधी कत्ल को अंजाम देने के लिए पीएम के रोड शो को टारगेट किया जा सकता है। वाज़ेह हो कि तमाम 5 मुलजिमीन को जुमा के रोज सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 जून तक पुलिस हिरासत में दे दिया गया है। अब खबर मुंबई से। महाराष्ट्र में हुए एक दहशतगर्दाना वाकया बनाम औरंगाबाद असलहा जब्ती मामले में रियासती हुकूमत की जानिब से मुलजिमीन के खिलाफ दाखिल की गई अपील को आज मुंबई हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिसे इस मुकदमे से बाइज्जत बरी हुए मुलजिमीन समेत दीगर मुलजिमीन को शदीद धचका लगा है। मौसूला इत्तेहाद के मुताबिक रियासती हुकूमत इंसदाद दहशतगर्द दस्ता ने खुसूसी मौक़ूक़ा अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है, जिसमें अदालत ने इस मामले का सामना कर रहे 20 मुस्लिम नौजवानों में से 8 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी कर दिया था, जबकि 3 नौजवानों को 8 साल, 2 नौजवानों को 14 साल कैद बामशक्कत की सजा और दीगर 7 नौजवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 60 सफ़ात पर मुश्तमिल अर्जदाश्त में रियासती हुकूमत ने हाईकोर्ट के जस्टिस गोई और जस्टिस कोतवाल को बताया कि मुलजिमीन पर मौक़ूक़ा कानून के तहत मुकदमा कायम किया गया था और सबूत और शवाहिद की रोशनी में उन्हें सजाएं भी मौक़ूक़ा कानून के तहत ही मिलना चाहिए थी। लेकिन खुसूसी मौक़ूक़ा अदालत के जज श्रीकांत अनेकर ने अपने फैसले में मुलजिमीन पर मौक़ूक़ा कानून के इतलाक़ को गलत ठहराते हुए अपना फैसला सादिर किया था, जिसकी वजह से बेशतर मुलजिमीन को राहत मिली थी। इसी दरमियान मुलजिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने मुंबई में अखबारनवीसों को बताया कि हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई अपील का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं और इस ताल्लुक से अदालत में नुमाइंदगी की गई है। इस मुलजिमीन की दिफा में आज सीनियर वकील आबाद फोंडा और एडवोकेट शरीफ शेख, एडवोकेट अंसार तंबोली व दीगर मौजूद थे, जिन्होंने अदालत से गुजारिश की कि मामले की जल्द से जल्द समाअत की जाए, क्योंकि 14 साल की सजा पाने वाले मुलजिमीन डॉक्टर मोहम्मद शरीफ और मुजफ्फर तनवीर की जमानत अर्जदाश्तें जेर समाअत हैं। अब खबर नई दिल्ली से। हरियाणा के फतेहाबाद इलाके के गांव में 5 नौजवानों ने 10वीं की एक तालिबा से गैंगरेप के बाद उसको जहर खिला दिया। उसके बाद मुतासिरा की मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले तालिबा ने अपने आप बीती अपने वालिद को बता दी है। इसके वालिद की तहरीर की बुनियाद पर पुलिस ने गाँव के 2 नौजवानों को नामजद करते हुए 6 लोगों के खिलाफ ताज़ुरात हिंद IPC की दफ़ा 376 और पॉक्सो कानून समेत मुतालिक दफ़ात में केस दर्ज कर लिया है। इस मामले के इंकिशाफ के बाद एक मुलजिम ने जहर पी लिया, जिसको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है। आज तक के मुताबिक पुलिस ने बताया कि 15 साल की नाबालिग बच्ची के वालिद ने बताया कि वो सुबह गैस सिलेंडर लेने के लिए गया था। उसकी बीवी खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गई हुई थी। इसी वक्त मौका देखकर मुलजिमों ने वारदात को अंजाम दिया है। मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दैनिक भास्कर के मुताबिक शिकायत करने वाले ने बताया कि जब वो सिलेंडर भरवा कर वापस आया तो बेटी घर पर नहीं मिली। दोपहर बाद जब वो अपने साले के साथ बेटी को तलाश करने के लिए गांव में घूम रहे थे तो गांव का लड़का अशोक और एक दूसरा आदमी बाइक पर उसकी बेटी को लेकर आ रहे थे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मुलजिम उसको छोड़कर चले गए। वालिद का कहना है कि मरने से पहले उसकी बेटी ने बताया कि गाँव का ही पवन उसको भटूट मंडी में चौपट्टा रोड पर ले गया, जहां उसके साथ पवन समेत पहले से मौजूद 4 नौजवानों ने रेप किया। उसके बाद पवन ने उसके हरे रंग की जहरीली दवा पिला दी। हालात संगीन होने पर घरवाले उसको फतेहाबाद के एक सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। पुलिस ने तलबा के वालिद के बयान की बुनियाद पर कुरधान के रहने वाले पवन, अशोक और 4 दूसरे नौजवानों के खिलाफ दफात 363, 366
ये 328 और 302 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। न्यूज कोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि देवी बच्ची के वालिद के पास आता जाता रहता था, इसलिए बच्ची उसको जानती थी, इसी का उसने पूरा फायदा उठाया था। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी सदर अमित शाह और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना ने कहा है कि वो अकेली इलेक्शन लड़ेगी। खबर रसां एजेंसी ANI से बात करते हुए शिवसेना लीडर संजय रावत ने कहा कि शिवसेना की मजलिस आमिला ने एक तजवीज़ पास की है कि हम आइंदा लोकसभा इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। इस रिजोल्यूशन में कोई तब्दीली नहीं होगी। रावत ने मजीद कहा कि बुध को दोनों लीडरों के दरमियान 2 घंटे तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अमित शाह ने फिर से मिलने की बात कही है। हम अमित शाह का एजेंडा जानते हैं। रावत ने कहा कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे आज पालघर में एक रैली को खिताब करेंगे, जहां वो इस मुलाकात पर भी अपनी बात रख सकते हैं। वाज़ेह हो कि बीजेपी सदर अमित शाह और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बुध को मातोश्री में बंद कमरे में तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की थी। इस मुलाकात में क्या बात हुई वह अभी साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से शिवसेना को लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद जारी रखने की बात कही गई है। जराये के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना से उनके लिए महाराष्ट्र काबीना में अगले फेरबदल के दौरान जगह बनाने और मरकज में शिवसेना के सीनियर लीडरों को जगह देने का वादा किया है। अब खबर नई दिल्ली से। सहाफी गौरी लंकेश कत्ल मामले में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार KT नवीन कुमार ने पुलिस को मुबैना तौर पर दिए अपने बयान में एक राइट विंग कारकुन को कारतूस देने की बात कबूल की है। नवीन कुमार ने अपने बयान में कहा है कि इस राइट विंग कारकुन ने उसको बताया था कि कारतूस का इस्तेमाल हिंदू मुखालिफ गौरी लंकेश के कत्ल के लिए होना था। NDTV के मुताबिक नवीन कुमार मुबैना तौर पर आर्म्स डीलर हैं और उसने माना है कि प्रोफेसर KS भगवान का कत्ल करने का प्लान था। नवीन कुमार का 12 सफ़े का कबूलनामा इस मामले में दाखिल चार्जशीट का हिस्सा भी है। वाज़ेह हो कि गौरी लंकेश का कत्ल उनके घर के बाहर गोली मारकर कर दिया गया था। गौरतलब है कि SIT ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने 650 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें नवीन कुमार अहम मुल्जिम है। SIT नवीन कुमार को IPC की दफात 302, 120B, 118 और 114 की मुख्तलिफ एहतिमामों के तहत मुल्जिम बनाया। चार्जशीट में करीब 131 गवाह के बयान दर्ज हैं। SIT ने कहा कि वो मुस्तकबिल में इस मामले से मुताल्लिक और दस्तावेजात पेश करेगी। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में महकमे सेहत की सख्त लापरवाही का मामला सामने आया है। वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने की वजह से हामिला खातून ने ई-रिक्शे पर ही डिलीवरी करने पर मजबूर होना पड़ा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने पैदा हुए बच्चे को मरा हुआ ऐलान कर दिया। हालांकि शुरुआत में उसकी जिंदा होने की बात कही जा रही थी। बाद में खानदान ने बच्चे को एक ज़ाती अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद CMO ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वाज़ेह है कि मुगलपुरा का रहने वाला बीवी को सुबह अचानक तिरसू दर्द हुआ। उसके बाद मुतासिरा के घर से एम्बुलेंस को कई मरतबा फ़ोन किया गया, लेकिन वहां घंटों तक भी कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। बाद में हामिला खातून को ई-रिक्शे पर ही जिला अस्पताल ले जाना पड़ा। इसी दरमियान खातून ने बच्चे को रिक्शे पर ही पैदा कर दिया। आनंद फानन में मुतासिरा खानदान खातून को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। मुतासिरा के शोहर अंसाद ने इल्ज़ाम लगाया कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पैदा हुआ बच्चे को मरा हुआ बता दिया और दाखिल करने से मना कर दिया। अब खबर तुर्की से। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इराक अगर शिमाली इराक के किंदील, संजर और मखमूर पहाड़ियों पर वाक़ कुर्द जंगजुओं के कैंपों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो तुर्की उन पर हमला कर देगा। एर्दोगान ने जुमेरात को टीवी चैनल CNN तुर्क के साथ इंटरव्यू में ये बात कही है। मिस्टर एर्दोगान ने कहा कि तुर्की किसी भी दिन किसी भी वक्त शिमाली इराक के किंदील पहाड़ी पर हमला कर सकता है। तुर्की शिमाली इराक में किंदील की पहाड़ियों पर ठिकाना बनाने वाली गैर कानूनी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के पर सरहद पार से कार्रवाई करता रहता है। तुर्की ने शिमाल में इराक के संजर इलाके में भी फौजी कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी है। नाज़रीन, अब खबर अमेरिका से। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक एक मरतबा फिर तनाज़े का शिकार हो गई है। खबर के मुताबिक फेसबुक ने करीब 14 मिलियन यानी 1.4 करोड़ यूजर्स का प्राइवेट डाटा पब्लिक हो गया है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह से हुआ है। फेसबुक ने कहा कि सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से 18 मई से 27 मई 2018 के दरमियान ये मामला पेश आया था। कंपनी के प्राइवेट अफसर एरन अगर ने अपने बयान में सॉफ्टवेयर में खराबी की बात कबूल की है। एरन ने कहा कि हमने इस मामले को ठीक कर दिया है और हम लोगों को मशवरा देते हैं कि इन दिनों में उन्होंने जो भी पोस्ट शाये किए हैं उसे एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब खबर ऑस्ट्रिया से।
آسٹریا میں 7 مساجد کو بند کیا جا رہا ہے۔ ان مسجدوں کی 60 امام بھی برخاست کر دیے گئے ہیں۔ حکومت نے جمعہ کو اعلان کیا کہ ملک میں ایسے کئی اماموں کی ملک بدری کا فیصلہ کیا گیا ہے جنہیں باقاعدگی سے غیر ممالک سے مالی معاونت حاصل رہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسی 7 مساجد کی تالہ بندی کر دی گئی ہے جہاں سے ملک کی سلامتی کو خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آسٹریا کی چانسلر سیباستان نے کہا کہ یہ کریک ڈاؤن مذہب اسلام کے خلاف نہیں بلکہ بعض افراد کی جانب سے اسلام کے سائے میں جاری سیاسی ایجنڈے کے خلاف کیا گیا ہے۔ چانسلر کے مطابق فیصلہ مذہبی معاملات کے نگران ادارے کی کئی ہفتوں سے جاری تفتیشی عمل کے بعد کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دارالحکومت ویانا میں ایک ایسی مسجد کو بند کر دیا گیا ہے جو ترک قوم پرستوں کے زیر انتظام تھی۔ وہی ایک مذہبی گروپ عرب کمیونٹی کو بھی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ مذہبی گروپ کم از کم 6 مساجد کا انتظام و انصرام رکھتا تھا۔ اب تک 2 امہ کے معاہدے منسوخ کر دیے گئے اور 5 دیگر کے معاہدوں کی تجدید نہیں کی گئی ہے۔ اب خبر شام کے بیروت سے ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اسد رجیم کے حلیف روسی فوج نے شمالی مغربی گورنری ادلب میں وحشیانہ بمباری میں درجنوں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری کے مطابق ادلب کے وسطی علاقے زرونا میں روسی فوج کے جنگی طیاروں سے کی گئی بمباری میں کم سے کم 38 عام شہری ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں شہری ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق گروپ کے مطابق ابتدائی اطلاعات میں 18 عام شہریوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی تھی، تاہم مزید 1.5 درجن افراد کی میتیں نکالی گئی ہیں۔ مقتولین میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد 60 تک بتائی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے آبزرور رامی عبد الرحمان نے بتایا کہ ممکنہ طور پر ادلب میں بمباری روسی جنگی طیاروں کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس میں روسی ساختہ بم استعمال کیے گئے۔ متاثرہ علاقے کے قریب امدادی کارکن زخمیوں کو فوری طبی امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے پاس 2 ایسے زخمیوں کو لایا گیا جن میں سے ایک بے ہوش تھا اور دوسرے کے چہرے کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی۔ خیال ہے کہ ادلب کے جس علاقے کو روسی جنگی طیاروں کی جانب سے بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ تحریر شام محاذ جو ماضی میں القاعدہ کی ذیلی تنظیم النصرہ فرنٹ کے طور پر مشہور تھی کے کنٹرول میں ہے۔ حالیہ دنوں میں اس علاقے میں روسی فوج کا یہ بدترین حملہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما